इनफैक्ट जब हम लैब बना रहे थे, हमारा पिच प्लानिंग कमीशन को यही था, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 230 मिलियन लोग, वी डोंट नो आवर जीनोम, वी डोंट नो हाउ a Pakistani genome looks like. There's no consensus sequence for us in this country. तो हमारी तो किसी भी clinical research, किसी भी drug development में कोई representation ही नहीं है. We are out of the game. And then when we came in, we said, यार हमें funds दिए जाएं ताकि हम एक patient cohort को उठाएं for God's sake और ज़रा देख लें कि हो क्या रहा है. उन्होंने पूछा कि उसका जीनोम किस तरह डिफरेंट है गोरे से. Yes. फिर उन्होंने पूछा किस चीज़ में, हमने कहा कैंसर में. फिर कौन से कैंसर में, तो वी थॉट वी डिड सम रिसर्च, वी केम बैक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स एंड वी सेड कि यार हम ओरल कैंसर में जाएंगे. सो आई बिलीव जब मैं आपसे मिला हूँ, यू ट्रैवल अ लॉट. आई हेट ट्रैवलिंग बट आई ट्रैवल अ लॉट. यू हेट ट्रैवलिंग एंड फॉर व्हाट रीजन? पेशावर पाकिस्तान के एयरपोर्ट से निकलते वक्त का या आते वक्त का मसला है, वो आपको थकाता है या द जर्नी इटसेल्फ? No, not I mean the jet lag, the before and after वाला हंगामा, जाने से पहले ऑफिस में हंगामा, आने के बाद बैकलॉग, so it's a bit of a mess, नहीं? So what backlog do you face? मतलब when I visited your lab, मैंने ये देखा था कि आप खुद मतलब हर एक चीज़ के ऊपर ज़रूर हैं, but you have people designated to confined jobs. Well, you always have like scheduled stuff जो pile up हो जाता है. तो बाहर के लोगों के साथ meetings, internal meetings, check-ins, lab meetings, town hall pending होता है. So you have to kind of spend time in the lab, which if you don't तो चीज़ें रुकी होती हैं, या पाकिस्तान में तो और भी मसले होते हैं. I mean, this is the follow-up की दुनिया, नहीं? हाँ बिल्कुल. Follow-up के बगैर तो नहीं होता. अच्छा. So external mess is पाकिस्तान में ये worse मसले हैं कि फॉलो अप है, बाहर नहीं होते ये मसले. बाहर इस तरह नहीं होते. I mean, if you pay someone, if you outsource something, you get it, right? You don't have to follow up. Really? I mean, at least मैंने जितना टाइम गुजारा है उधर पाकिस्तान में फॉलो अप नहीं करना होता, फॉलो अप के लिए एक बंदा रखना होता है, उसको फॉलो अप करना होता है. True, yeah, and then you can take it from there. हाँ. शायद उसके लिए भी फिर बंदा. But when I visited your lab, which by the way did not feel like a Peshawar's facility, I could easily confuse that with Dubai's or at least Lahore's for that matter, where I felt that somehow कुछ same wavelength के लोग या same mentality के लोग या same cause पे genuinely loyalty के साथ काम करने वाले लोग इकट्ठे थे, और उसके environment से stressed vibe नहीं आ रही थी. It was a happy vibe. Yet your work is very, I would say, complexed in terms of data gathering, in terms of research, in terms of the work that we witnessed, जो आप बताएंगे भी. तो वो vibe किस तरह आप बनाते हैं, और वो vibe मुझे आपकी हर एक चीज़ में नज़र आती है. Great question. I think that's the magic you need in universities, in research labs, जो नहीं है हमारे पास. I think for starters, any research group, any academic department, or any startup should be a high trust environment. If there's a low trust person, वो तो सारी किश्ती खराब कर देता है. So the biggest filter is this someone I trust? Is this someone I can spend a day with? Is this someone I can leave in my lab behind when I'm out? If the answer is no, या iffy, that's not the person. चाहे हार्वर्ड से PhD हो, I'm not going to work with that person. So the first filter is always trust वाला ना. And then the culture begins from there. So if you trust someone, any human being, they'll reciprocate with trust. Na? They'll give that trust back to you. So I think, and then it leads to, of course, more confidence in each other. It leads to productivity, and then it leads to happiness and enjoying your work and getting a kick out of it. So it's I think the word for this is culture. You have to set the right culture in your workplace, especially if it's a creative business like science. Art nahi bol raha tha, science. Creative business? Like science. Like science. Yeah. Science can be creative? Science is super creative. I mean, it's full of curiosity, or it runs on curiosity or creativity.
If you don't have this, तो फिर तो science नहीं है. I mean, science, people think it's dry or दो चीज़ें मिला के तीसरी चीज़ बन जाएगी test tube में या कोई maths This is how it's taught to us in our school system. That's the wrong way. That's why we don't have genuine scientists in our society. I mean, true scientists, true creative beings, curious beings who are genuinely inquisitive about something कि ये कैसे हो रही है, ये क्यों नहीं हो पा रही, ये किस तरह हो रही है, etc. etc. So I mean, the why, the how, वाले questions. So yeah, I think it's the culture. इतना डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो है कि अगर आपसे किसी एक एट्रीब्यूट पे बात करूं तो मुझे लगता है कि उस पर आराम से कन्वीनियंटली पूरा दिन बात हो सकती है. नॉट जस्ट व्हाट यू हैव डन इन लाइफ बट द इंटेंसिटी एंड द डेप्थ यू हैव अटेन्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड. लेट इट बी द इंटर्नशिप्स दैट यू ऑफर एट योर लैब or let it be Peshawar 2.0 that I get to hear from everyone I meet. डॉक्टर फैसल से मिल रहा हूँ, मुझसे कोई ये नहीं पूछता यार बूढ़ा है जवान है कैसा है, ठीक है डॉक्टर फैसल 2.0 वाला. तो इट इज़ अ जनरल परसेप्शन कि यार वो वाले डॉक्टर फैसल, ठीक है. टॉक अबाउट योर वर्क, इट इज़ सो इन डेप्थ कि उसको सुनने का अपना एक बड़ा मज़ा है. तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब आपसे मुलाकात होगी कि इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years back or 15 years back when you started 2.0. Yeah, 11, 12. Yeah. 11, 12. क्या पड़ी थी उस टाइम पे जब धमाके हो रहे थे, जब समझ नहीं आ रहा था कि ये मुल्क का हिस्सा रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा. एक बंदा 2.0 क्या वो जो ओलंपिक्स में वो शमा सी नहीं होती, वो लेके निकल पड़ा अकेले. Yeah, first it wasn't एक बंदा, it was a bunch of people. ठीक है, आइडिया स्टार्टेड ऑफ, मुझे अभी भी याद है ऑक्सफोर्ड के ज़माने में व्हेन आई वाज देयर, और रिमोटली आई रीच्ड आउट. ट्विटर नया नया शुरू हो रहा था, लोग अपने अपने अकाउंट्स खोल रहे थे उसमें. एंड आई वाज लाइक, फेसबुक पे अगर मैं कोई सवाल डालूंगा तो सारे अवामी लोग जो हैं बीच में आ जाएंगे. अवाम एज इन people who don't really appreciate what innovation and everything is. I think the nerdiest, the early adopters Twitter पे मिलेंगे. तो मैंने डाला and then I found Uzair. ठीक है. Uzair was trying to organize a TEDx event और उसको चक्कर दिला रहे थे मुख्तलिफ institutions. I bumped into him online and then he said, अच्छा फिर एक ही रात December 15, 2012, he took a flight back to England and I took a flight to Peshawar. कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ मगर you should meet these two guys called Bilal and Salman, and he tags them. दोनों एडवर्ड्स में पढ़ा रहे थे उन दिनों में. And then it was on a rainy night. I just met. We scheduled. Everyone was late, but we finally met in town. Actually, University Town. There was this Friends Cafe back then. So उधर we sat for like hours. और फिर घर जाने का दिल नहीं कर रहा था. So Bilal, Salman, Uzair then remotely works with us till about July, September the next year. And then we come back, meet, and we were like, game is on. So, so I think धमाकों और उन हालात की वजह से ही बना था. I mean, that was the trigger. Yeah, that was the trigger. के enough. We are not part of this. So it was a statement at multiple levels, and it was this drive ke we are out of this, and no one represents us, so we need to stand up and represent us and the young ones. So हमारा एक unspoken cut off था कि unofficial cut off था कि भी 30 साल से जो भी ऊपर हो उससे हमने बात नहीं करनी. I mean, because they've let the whole thing down, right? So we targeted young people purposefully. Ke that's the source of hope. That's the source of energy. That's what will light the fire. So I think the rest is history. We were accompanied by so many exciting people in our journey throughout. I can't even name them. They're like hundreds. And then a whole volunteer movement kind of started. There's no business plan. Peshawar 2.0 had no business plan. आहिस्ता से फिर क्रिस्टलाइज हुआ और चीज़ें आगे की तरफ गई. So we were very overwhelmed at the beginning, and then the excitement kept building, and then the rest is history. It was amazing. It won't be a false statement if I say that
you, along with these three gentlemen, are responsible to start a startup culture in Peshawar. I know you're humble, you won't take the credit, but it's true, I right? should take it for the sake of my team. Yes. Okay. Everyone put a lot of effort, a lot of sacrifice, personal sacrifice, time की, resources की, पैसों की, सब की. Career की, opportunity cost. You know, staying here is a big cost. I don't want to name everyone, but I mean, yes, that's what lit the fire literally. Normally, किसी भी event, किसी भी program में, unfortunately, I don't want to say this example, but like Quetta, right? Quetta or Peshawar was not part of any program in Islamabad, let's say. So, KLI wala word, hai na? Karachi, Lahore, Islamabad. But we're super proud that Peshawar was on the map. Our events made it happen. A lot of credit to sponsors of those, early sponsors of those events. And then everyone who joined later on, I think. So yes, the short answer is yes. I think that was the tipping point. क्या events थे sir? क्या? So we always एक second. yeah, क्या mission था? yeah, क्या vision था? yeah, क्या events थे? yeah. और उनका उस टाइम पे क्या impact था? और उस टाइम का created impact आज तक किस तरह अपना impact कायम किए हुए? Good questions. So we started off. So जब हम चार मिले, we said यार एक closed group होना चाहिए. तो वो अभी भी है Facebook पे. अच्छा. तो उस पे कुछ लोगों ने ऐड किए. People, each of us knew. No, Zishan Parvez bhai and I think Fasi भी थे and others. And we toyed with the idea कि क्या करना चाहिए ना. Dr. Ali थे, Ali Jan, early in the days. And then we were like, क्या कर? So it just came out and we just said कि we want a city of technology, design and art. No city of flowers, no city of bomb blasts. Khatam. I mean, we need to move on now. So we shed all of this. But the way you're telling, it is actually 2.0. What's done with the city of flowers? It is. I mean, it's a city of tech yeah. now. ठीक है, सही है. अजीबा गमले वमले लगे इधर ही उबो और कहीं. I mean, that's not how the world works, right? Nothing against flowers, but I mean, yeah. So we said the future is here now. Enough is enough. We're going to build a city of technology, design, and art. And that stuck. That was the tagline. Peshawar 2.0 is the city of technology, design, and art. And it was all encompassing, and everyone agreed. हर किसी का जो ambition or desire था उसमें capture हो रहा था. So this was kind of the mission. Early activities were always out of the box. तो शर्त ये था कि it should cause a ripple. It can't be green डब्बों वाले शील्डों वाले event ना. I mean, 160th conference on XYZ जो हमारे universities में होता है. Impact till the last layer होना चाहिए. Yeah, I mean, and then out of the box होना चाहिए. So it should wow people. So we said the easiest ones are things like TEDx, yeah, Startup Weekend. तो हमने initially उनसे start लिया. Gradually we came up with our own stuff. We also came up with our own co-working space. Board में Basecamp के नाम से. That was buzzing. Basecamp का एक नाम तो रहा है अपने time में. Yeah, so we were lucky to have Basecamp. Basecamp be so we wanted TEDx to happen in Peshawar University. और मुझे भी याद है कि 10-12 दस्तखतों और फॉरवर्ड के बाद और 5-6 weeks के बाद we got a no. Oh. तो we were like ये क्या एक event में ये हो रहा है तो and then we were like we need our space of our own. And then we found a great investor, a patient investor, a visionary investor. And then we had Uzair and we had Adil, we had others. And then we rolled out Basecamp, semi-grey structure लिया, नया plaza बन रहा था. And हमने कहा हम खुद से इसको finish करेंगे. तो बड़ा मज़ा है, पूरा activity का बड़ा मज़ा है. And then it was buzzing. So I think one estimate is we had about 600 plus events. Over the span of 7-8 years. 600 plus events. Yeah. If the span is 6 years, that is 100 events a year. That's like crazy. So it's an event every week.
Literally. Pretty much, yeah. Oh. क्योंकि छोटे भी थे, बड़े भी थे, workshops भी थे, seminars भी थे, You must make a lot of money. product launches भी थे. So that was the other question. We didn't have a business plan. Exactly. We had a mission. That's what I'm saying. It was very ahead of time. Co-working spaces are meant to be real estate businesses. But यहाँ पे तो हमारे दूसरा एजेंडा था. पेशावर 2.0 का एजेंडा था कि भाई वी आर नॉट, हम किसी पुराने ज़माने के लॉ फर्म को जगह नहीं देंगे, हम करीम को जगह देंगे. सो करीम का पहला ऑफिस बेस कैंप में था पेशावर में, राइट. एंड देन सो वी हैड आवर ओन लाइन्स व्हिच कुड नॉट गो अलोंग अ मनी मेकिंग सॉर्ट ऑफ मॉडल. That was a sacrifice. So yeah, we didn't have a business model. We didn't make any money. We invested a lot of money. We generated cash later on, which was invested back in a way. But events were crazy. I mean, हर किस्म के events. And book clubs, we've had biology के events, we've had art, design, sketching, video making. And these are not like tuition academy type of events, right? I mean, video वाला event, video making पहला event ज़ीशान भाई ने किया. So like, proper thorough किस्म के thoroughbred professionals ना. Startup का event पहला one of those talks was, I still remember Haseeb था. Haseeb Awan was a celebrated Silicon Valley entrepreneur. Peshawar से ताल्लुक, D.A. Khan से ताल्लुक, lived, born and raised Peshawar. So then that's the other thing. Everyone who loved Peshawar, who had a soft corner for Peshawar, who wanted to give back, just came in. And when you see that energy, I mean, it's infectious. But then you have to make an energy which would somehow go beyond a certain line of control. Impact करे वो लोग जो बाहर से आए या डिफरेंट शहरों से आए या जिन्होंने पैसे डाले या जिन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, उन लोगों को वो दिखाना कि इसका ये इम्पैक्ट होगा, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं. आई मीन चीज़ें इतनी अर्ली थी और चीज़ें इतनी एक्साइटिंग थी कि किसी ने पूछा भी नहीं कि ROI क्या है, आगे क्या होगा. इट वाज सो ग्राउंड ब्रेकिंग कि पीपल जस्ट चिप्ड इन, पीपल जस्ट इन्वेस्टेड विद टाइम, कैश, काइंड, जो भी कर सके. एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट्स डन. हर चीज़ में अगर आप कैलकुलेशन शुरू करें फिर तो कुछ नहीं होने वाला. फिर तो लाइक you have to take that risk, or you have to throw forward, right? You give back. It's not just about taking everything. You also give back or throw forward into the next generation. And that's what happened, I think. We didn't make a $1 billion exit or anything. Not even close. But we did impact millions of lives. Millions of young people's lives in Peshawar and around us. Millions is a big claim, by the way. It's a big claim. I mean, because the ripples, we could see the ripples. If you pick up, for example, Digital Youth Summit, that was our product. That was born in Basecamp. We worked on it for 6 months. We cooked it up with the KPIT board and funded by the World Bank. फिर हमने IT board को पकड़ा दिया, वो अलग story है. गलत किया, ठीक किया, वो अलग question है. But we started off, we had, I don't know how many thousand attendees in that first digital summit. Shiraz Arena जो सदर में है ऊपर, right? 2014-15 की बात है. We had, I don't know how many million impressions on Twitter. Oh. In 2014-15. Oh. So, and these are not bots. These are like people engaging, people flocking in. We had a few hundred plus speakers from all around the world. Oh. So the World Bank helped us fly in some people from Silicon Valley, for example. That's how we discovered Haseeb. So what you're suggesting is कि 2014-15 में Silicon Valley से पेशावर लोग आ रहे हैं. Absolutely. For a talk. For spending a week with us. Oh. तो Investor Summit हमने किए. हमने 3 दिन का पूरा समिट चलाया. आज हम शार्क टैंक और इस टाइप की चीज़ें देख रहे हैं, वो आपने किसी को देखे बगैर अपने इंडिजिनस माइंड से पेशावर जैसे शहर में करवाया है. ओह या, आई मीन बाहर देखे, किसी को देखे बगैर नहीं कहेंगे. ठीक है. बट यस, तो दैट्स व्हाट. और कहाँ देखा आपने? Well, I was in England, so I saw things over there.
I could see they were playing catch up with the Americans. और मुझे एहसास हुआ कि maybe to leapfrog we should kind of rile up बच्चों को हम डॉक्टरी और इंजीनियरिंग से हटा के इन बाकी चीज़ों पे लगाना होगा. Otherwise we're not going to have a vibrant society, a prosperous society which has multiple skill sets. अब इतने सारे डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं कि जो इधर चाहिए होते हैं वो तो एम्प्लॉय हो जाते हैं, बाकी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो ये तो नेट नुकसान है पूरे सूबे का, पूरे मुल्क का, in any terms, social terms, financial terms, economic terms. Even morally. It's a destruction. I mean इस पे तो पूरा research होना चाहिए. For example, KP के कितने लोग Middle East में, and they leave behind their families. So you're totally right. Like social destruction है pretty much. एक पूरे generations बड़े हो गए हैं without their father, right? So ये तो बात कहीं और जा रही है. But I mean, so it's really important कि we have a diverse population here, and we enrich them with diverse set of skills, expertise. इससे आपके इकोनॉमी में, इस पे बड़ा रिसर्च भी हुआ, इस आपकी इकोनॉमी में नए नए तरह तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आते हैं if you give them an enabling environment. So that was the hope, that was the plan, that's what we saw. I used to share this with Uzair, Bilal, Salman, everyone kind of agreed, and that's how it started. So it's pretty much indigenous, homegrown. अच्छा, मज़ा आ रहा था. अब मुझे आपसे मिलके ये समझ में आई है कि यस, जिस वजह से भी पेशावर 2.0 ख़त्म हुआ है, आज नहीं है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं किसी और ऑफिस में किसी और शक्ल के थ्रू उसके ऊपर काम आगे बढ़ रहा है. लेकिन आपने एक बीज लगाया, यू सीडेड अ कॉन्सेप्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे यहाँ पे है. मैं आपका ये सेम, जिस तरह आपने कहा ना, कल्चर बनाना पड़ता है, वो सेम कल्चर एज यू जस्ट सेड के पीपल ऑल ओवर पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली कमिंग इन, आई सी द सेम इन योर लैब when your team was telling us about the internship program that you offer. और उसमें कहाँ से बच्चे, किस किस एज के लोग किस किस इंस्टीट्यूशन से आते हैं और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और किस तरह से एक क्रिएटिव साइंस क्रिएटिविटी का एक वो छोटा सा एक बड़ा क्यूट सा एक हब है. उसके बारे में बताएं जी. What that internship program is, what facility do you have, what do you offer, and how people have a benefit by themselves and impact in return. So I run this research lab which sits in Rahman Medical Institute. We're very blessed to be situated there in the middle of all the hospitals और सारा. बिलाल के अल्फाज में कि भाई हम पेशावर का प्लान बना रहे थे. Now we're kind of ultra focused on phase 5 क्योंकि पेशावर में lots of economic activities there. Phase 5 is your healthcare cluster, and we sit at the heart of it, which is Rahman RMI, right? RMI में हमें जगह मिली. We're doing all sorts of research, काफ़ी hardcore projects भी हैं, cancer genomics वगैरह के. We're trying to work with infectious disease and lots of other diseases, lots of other cancers. But on the other hand, we also have lots of exciting interdisciplinary science, which is on different tangents, like space biology, for example, like microfluidics, like digital health, wearables. For example, हम Xiaomi की जो घड़ी है उस पर हम एक clinical study run कर चुके हैं कि what can we capture from there, और machine learning के ज़रिए हम क्या क्या predict कर सकते हैं locally अपने patients, अपने लोगों में. We are also doing a digital histopathology project जिसमें आपके मुख्तलिफ लैब के टेस्ट्स डिजिटाइज होते हैं, biopsy slides, and then you use machine learning to predict different features of those diseases. So it goes in all sorts of tangents. But then one of the talent programs is this, जिसको आप refer कर रहे हो, is this highly sought after summer internship program. And this is for high schoolers. तो हम कहते हैं कि, and it's kind of related to my journey as well. मुझे गुस्सा आता था कि जब लोग मुझे चुप कराते थे कि यार बच्चे को चुप करो. I mean, you know, गलिशा. और मुझे गुस्सा आता था कि dude, I have a question and I need an answer. I mean, I've read up on this, you haven't read up on this, and I have a legitimate question, can I please be answered? तो मुझे हमेशा वो जिद सा होता था कि why are these people not answering my question or letting me find my answer, ना? Universities में, colleges में इस तरह का माहौल होता है.
So we just kind of came up with the idea that we'll open up our doors during summers to the best high school बच्चे, A levels, O levels, matric, FSC. Initially, और थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस तो था बेस कैम्प का, पेशावर टू बानो का, हाउ टू डील विद चिल्ड्रन, हाउ टू स्टिच अप प्रोग्राम्स, हाउ टू डू ट्रेनिंग्स वगैरह, हाउ टू मेजर इम्पैक्ट वगैरह. And then academic background भी था, so I teach, I taught a lot, I had courses, graduate, postgraduate सारे लेवल पे. तो उसके ज़रिए हमने 6 weeks का एक प्रोग्राम बनाया, और अभी 6वां साल होगा इसका. 6th year, we've had some amazing alumni. We get hundreds of applications from across the country. उनके shortlisting होती है, उनके interviews, and then we have a selection conference जिसमें top 30-40 बच्चे लैब में आते हैं. तो अपने अम्मी अब्बू उनको ड्रॉप कर रहे होते हैं सारा कुछ. अम्मी अब्बू भी आ जाते हैं, थोड़ा सा उनको साइंस का लग जाता है थोड़ा सा, which is good. थोड़ा डॉक्टरी वाला तोड़ दें हम इस जरिए से ना. I mean, seeing is believing. So they enjoy, the parents enjoy coming to the lab. Some parents, especially Lahore के या पिंडी के बच्चे आते हैं, इस्लामाबाद के, their parents spend the whole day with them, waiting for them, looking at them कि क्या परफॉर्म कर रहे हैं, etc. So the whole day is at the lab. उनमें से फिर जाके हम 4, 5, 6, 7 बच्चे सेलेक्ट करते हैं. अच्छा. So it's a rigorous process. इतना rigorous कि sometimes we get emails after the selection, जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए होते, they're thanking us कि यार ये सिलेक्शन प्रोसेस ही हमारे लिए काफ़ी था. इसमें जो हमने सीखा है बहुत ज़्यादा सीखा, एटसेट्रा. तो सो द होल इट्स अ नाइस ग्राइंड. शुरू में लोग पीपल आर क्वेश्चनिंग कि क्यों आपने इतना ही क्या रखा हुआ है, पूरा चिंजन कार दे. आई मीन हाउ आर यू इवन, why are you even investing so much time? But again, if you add rigor, if you invest into it, it becomes a very thorough किस्म का pipeline. And then the kids we get are all over the world now. So I always mention Dawood, who entered a program that I always loved. I kind of envy him. Imperial College London में गए, bioengineering जो उनका synthetic biology program, उसमें undergrad, अभी भी graduate हुआ है, so making us proud over there. And then we have people in the Middle East, we have people in KMC, for example. These are very smart बच्चाज जो अपना independent research करते हैं, पूरे प्रोसेस के साथ. इनको एक मेंटर असाइन होता है, और ख़ुद ही उस रिसर्च को फिर लिखते हैं या पोस्टर बनाते हैं. एंड देन दे प्रेजेंट इट ऑन द ग्रेजुएशन डे व्हेन देयर पेरेंट्स एंड देयर टीचर्स एंड एवरीवन इज इनवाइटेड. द पब्लिक इज इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड, तो आपने भी आना होगा. एंड देन दे गेट टू सी, इट्स अ नाइस सेलिब्रेटरी सॉर्ट ऑफ इवेंट. I should say some students also present at grown-up academic conferences. और हम ये करते हैं कि हम उनके स्कूल का नाम उस पर नहीं लिखते. अच्छा. एंड इसलिए नहीं लिखते, सो दे आई जस्ट वांट टू सी कि वेदर दे इवन अंडरस्टैंड कि बच्चे का किया हुआ रिसर्च है या बड़े का. एंड दे गेट पीयर रिव्यूड एंड दे गेट सेलेक्टेड, इन्वाइटेड फॉर कॉन्फ्रेंसेस. शौकत खानम कैंसर सिम्पोजियम फॉर एग्जाम्पल. शौकत खानम कैंसर सिम्पोजियम, दे डोंट नो कि कुछ पोस्टर्स बच्चों के हाथ के हुए हैं, तो ब्लाइंडली उनको नहीं पता होता और वो सेलेक्ट कर लेते हैं एज इफ दे आर. सो दिस इज आवर वे ऑफ वैलिडेटिंग कि वाकई में बच्ची ने कुछ सीखा है. अंडर ग्रेजुएट इंटर्नीज, नहीं, हाई स्कूल ए लेवल ओ लेवल्स का बच्चा जो आपके इस प्रोसेस से, जिसका नाम इंटर्नशिप है, समर इंटर्नशिप है, उससे निकल के compete कर रहा होता है with intellects, with consultants. With consultants at Shaukat Khanum Cancer Symposium, for example, and others. This is so satisfying and interesting. Yeah. I mean, that keeps us, that brings a lot of energy to the lab कि ये बच्चा 2 महीने पहले क्या कर रहा था, किस तरह उठ रहा बैठ रहा था. Now the way she or he is walking and presenting and talking science, like real science, not गलतियों वाला या इधर उधर science, thoughtful science. So yeah, it's really making the rounds, and we're very proud of the whole program. Sir, if I ask you in number, आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कितने बच्चों की ज़िंदगी बदली होगी? I'm very sure जितने बच्चे आए हैं, I think 30-40-50 के करीब होंगे, 40-50 के करीब होंगे, 30-40 sorry.
But then you have, remember, we have those 30, 40 who attend the conference every year. तो 300-400 बच्चे हो गए जो engage होते हैं हर summer को और इस competition में हिस्सा लेते हैं एक किस्म से. There are repeat applicants as well. Some people say पिछले साल हम नहीं हुए तो इस साल हमने try किया हुए, etc. It's like Blums or Howard or Oxford. Oh, nice. Yeah. So our lab is stringent than Harvard. Our acceptance rate is less than 1%. Less than 1%. Harvard 7. हाँ. So again, it's something to be proud of. Mashallah. But it's sad at the same time कि भाई इतने opportunities नहीं है हमारे मुल्क में real science करने के लिए जिसमें बच्चे आए compete करें. सर अगर एक compliment दूं आपको कि जहां हम यहाँ से मुल्क के बाकी हिस्सों में बच्चों को भेजते हैं अच्छी तालीम के लिए, या पाकिस्तान बच्चों को बाहर भेजता है तालीम के लिए, तरबियत के लिए, सीखने के लिए, वहाँ पे आपने एक ऐसा सिस्टम पेशावर में बनाया है जिसमें पूरी दुनिया से लोग पेशावर आ रहे हैं. एंड इट इज़ अनडाउटेडली योर इंडिजिनस एफर्ट. ठीक है कि उसमें आप एक ग्रुप को पेशावरी एफर्ट. इट्स अ पेशावरी एफर्ट. I'll take that compliment. हाँ, पेशावर. ज़बरदस्त. So yeah, I mean, a couple of years ago we had a German intern. जर्मनी से आया था. फिलिप नामी लड़का. गोरा जर्मन. गोरा जरूरी है. गोरा इसे गोरा. अच्छा. गोरा चलें. अच्छा. I think that's what you're trying to ask. क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पेशावर को ट्रस्ट करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है. What the media has. No, I mean, yeah, that's the sad thing. I mean, that's where we. For a boy of that age to come to Pakistan, to Peshawar, and to spend summers here. Yeah. And that strictly for academic purpose. इसलिए मैंने पूछा गोरा. Yeah, so true. So the reality is कि Philip comes and does internships with us. फिर हम भी थोड़ा hospitality दिखानी होगी. So every summer internship एक सैटरडे को किसी सैटरडे में से एक सैटरडे हम अंदरून शहर लेके जाते हैं, तख्तबई लेके जाते हैं. So they take some nice memories from Peshawar, especially those who come from outside Peshawar. Then my collaborators visit, like अमरीकी लोग, Austrian हमारा एक था collaborator, वो आए थे Peter. So people visit us. That's the reality. The sad thing is कि जो मीडिया वाला अभी तक चल रहा है, जो ट्रैवल एडवाइजरीज चल रही हैं डेवलपमेंट सेक्टर में एट्सेट्रा, दोज नीड टू बी रेक्टिफाइड. दैट्स व्हाई हम इतने नाराज़ हैं, हम 30 से ऊपर उनसे बात ही नहीं करते. सर कोई बात नहीं, बहुत भी अंधेरा हो जाए ना और कहीं खेमे में कोई एक शमा लगा ले तो दूर तक रोशनी जाती है. इंशाल्लाह आपकी रोशनी फैल जाएगी. I mean, no, we're coming. We might have been the underdogs. But these kids are growing up fast. Na? Yeah. They're going to take over. And hopefully for the good. Things going to change very fast, suddenly. सर आपके बारे में मुझे एक बंदे ने एक बात की थी कि अगर आज के दौर में पाकिस्तान में कोई ट्रूली साइंटिस्ट है तो डॉक्टर फैसल हैं. ये मुझे साजिद साहब ने ये बात की थी. और मैं व्हेन आई वाज अबाउट टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थॉट डॉक्टर फैसल कोई ग्रे हेयर, कोई बिल्कुल ज़ईफ सा बंदा आएगा और ट्रूली साइंटिस्ट है तो बिल्कुल कोई नर्डी और कुछ आइंस्टाइन. उधर से यू वॉक इन, हेयर स्टाइल भी ज़रा डिफरेंट मिजाज का, ज़रा दाढ़ी शाड़ी, हैंस्ड बॉय, पेशावर 2.0, बातें किसी और लेवल पे चली गई. सो आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि आप MBBS वाले डॉक्टर तो लग नहीं रहे, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, दे आर वेरी प्रॉपर. बाद में पता चला यू आर अ PhD, और वो भी माशाल्लाह से ऑक्सफोर्ड से. सो यू आर अ PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, जो हम लोगों ने या तो प्रॉब्ली मोनोपोली के बोर्ड पे देखा है या उसके किस्से कुस्से सुने हैं. एंड यू हैव बीन देयर फॉर 16 years, राइट? नो, सो आई डिड माई मास्टर्स इन ऑक्सफोर्ड एंड देन माई PhD. सो मिला के 5-5.5 साल. अच्छा, तो आपका UK का एक्सपोजर ऑल टुगेदर कोई 5-6 साल का है, राइट? और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है पेशावर के अंदर समहाउ कोई छोटा सा UK बनाने के लिए. और अब आपको लगता है कि वो रिपल अब थोड़ा दिखता है कहीं ना कहीं? UK से बेहतर बनाएंगे. राइट. UK से बेहतर बनाएंगे. But the other question is slightly painful. How do we scale this? That's a problem I still don't have an answer to. It can't be a one-man show. I'm not the only scientist, by the way. बहुत सारे और भी अच्छे scientists. How do we bring them together? How do we give them an enabling environment? How do we make more of these labs? क्योंकि ये labs बढ़ेंगी और मुख्तलिफ labs, like
हर डॉक्टर का अलग कोई स्लांट होगा, अलग इंटरेस्ट्स होंगे, तो एक नया बाग बनेगा आइडियाज़ का, राइट? वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस. सो वन ऑफ द क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू solve and think about and solve is, how do we scale this? How do we bring more people? How do we create that mindset कि यार हर चीज़ प्लॉटों में और उन चीज़ों में नहीं है. There's a lot to give, to be done outside that, and there's a lot of satisfaction, way more than material stuff, in these things which you leave behind, right? उसके लिए सर कुछ लोगों को बाहर जाके वापस आना पड़ेगा. True. यहाँ That's पे one. if I get to hear this from my elders कि बेटा तुमने सारी ज़िंदगी लगा दी, अभी तक एक प्लॉट नहीं लिया, तो मुझे मेरी लाइफ का मिशन दे दिया गया है. Yeah. मेरे विजनरीज से, That's such a मेरे shameful. मेंटोर से. Yeah, I might be using strong words, but like it's such a shame कि आप अपने बड़े हमारे मुआशरे में वो बता रहे होते हैं कि you're not worth anything because you haven't built a house, or you don't have a plot, or where's the gaadi, right? I mean, no one, they're all appreciating the wrong stuff which probably they aspired for in their lives, na? तो आई थिंक ये चीज़, That is the only measure of success here in Pakistan. ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए. पाकिस्तान में सक्सेस का अब अनफॉर्चुनेटली लोग ये कहने लगे हैं, और बहुत माजरत के साथ, कि यार PhD करके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊंगा, क्या महीने के लाख रुपए. तो PhD इसलिए नहीं करनी कि पाकिस्तान में उसका फ्यूचर नहीं है. You understand? Yeah. So I think it goes both ways. Someone has to take a lead. आप एक इंडिजिनस एफर्ट से इतना इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली इम्पैक्ट क्रिएट करने के ज़िम्मेदार हैं वो तो मोटरवे की एक्सटेंशन कितनी बन गई है, और सूबे कितने बन गए हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह. Yeah, we need to change that. We definitely need to change that. So coming to the most interesting part of today's conversation, at least most interesting to me, is your research part. मेरे उसमें 2-3 सवाल होंगे. पहले एक बड़े वाला कर लेता हूँ, फिर बीच में बाइसेक्ट करके जाते रहेंगे. आप जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, राइट? Yeah, one of them. One of the topic is genetics. One of the topics is genetics. And genetics is in itself such a big field or research work कि सिर्फ उसी पे बात हो जाए तो मेरा ख्याल से बहुत सारी बात है. Sure. उसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं उस पर भी आएंगे. Sure. बट जेनेटिक्स मुझको पर्सनली इसलिए इंटरेस्ट कर रही है कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो जेनेटिक्स के साथ खेल रहे हैं सर, वो तो आगे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकता है. लाइक लिटरली. वो तो चाहे इंसान से डायनासोर बना दे, वो चाहे तो माँ के पेट में ट्विंस बना दे, वो चाहे काले के घर गोरा बच्चा करवा दे, वो चाहे लड़की को लड़का कर दे. तो ये जेनेटिक्स की क्या फील्ड चल रही है दुनिया में, आप क्या कर रहे हैं, आपकी वाली फील्ड किस तरह से आने वाले वक्त में पाकिस्तान को या ग्लोबल उसका क्या इम्पैक्ट जा सकता है, वो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो और इसके क्या फ़ायदे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस सब पे ज़रा थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. So quickly, like genetics is जो विरासती बीमारियाँ, फॉर एग्जांपल मौरूसी बीमारियाँ, जेनेटिक congenital disorders, inherited disorders. शुगर जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है. हाँ, तो आई मीन एवरीथिंग, इसका खुलासा आपको बता दो. खुलासा ये है कि everything that the human body does is guided by the DNA in our body. हमारे बॉडी खलियों से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है. We have a few trillion cells in our body. Each cell has a copy of the DNA. जो आधा हमें अम्मा से मिलता है, आधा अब्बा से. अच्छा. So from both of our parents. And then we have a copy of the same DNA in every cell. हर सेल फिर उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, पढ़ता है, उसमें से गाइडेंस लेता है. It's like the operational manual of the body. So now you can easily imagine कि it's like the program of life. तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर उसमें कोई गलती आती है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा. सिमिलरली ह्यूमन डिजीज़ की सारी जड़ें DNA के अंदर हैं. आपकी DNA बॉडी की किसी हिस्से में DNA में कोई ख़राबी आती है, एंड देन योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली एंड डिजीज़ इज़ क्रिएटेड. चाहे कैंसर हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर दिल की बीमारियाँ हो, शुगर हो वगैरह,
इवन इन्फेक्शियस डिजीज़ हमने देखा कोविड में कुछ लोग सर्वाइव कर गए, कुछ लोग पहले ही हफ्तों में बेचारे फौत हो गए बिकॉज देयर जेनेटिक्स वर डिफरेंट. They had different deficiencies in their genetics. They couldn't respond to the virus. तो खुलासा ये है कि हर चीज़, everything's guided by DNA. So the new wave of medicine now is कि यार अगर हमारे पास अगर ऑफ क्लिनिक में एक मरीज़ आ जाए और हम उसके टेस्ट्स करवाएं और एक्सरे करवाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी जीन्स को भी देखें, उसके डीएनए को हम देखें, क्योंकि उससे हमें गाइडेंस मिलेगी कि क्या मसला आ रहा है. एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रिसीजन मेडिसिन. वन साइज फिट्स ऑल मेडिसिन नहीं चल सकता, और वी नीड टू नो द जीन्स ऑफ अ पर्सन बिफोर वी कैन प्रिस्क्राइब समथिंग. अगर आप कैंसर में देखें तो बाहर जब आप जाते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ कैंसर जहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका है और जहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट, वहाँ पे दे लुक एट योर जीन्स. अगर आपके अंदर फलाना म्यूटेशन है तो आपको ट्रीटमेंट ए देंगे. अगर आपके अंदर वो म्यूटेशन नहीं है, डीएनए में वो चेंज, तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट देंगे. शायद आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि आपका उससे कोई भला नहीं हो सकता. सो देन दे मैनेज द डिजीज़ डिफरेंटली. ये भी फ़ायदे की बात है क्योंकि उसमें आपकी तकलीफ़, आपका ख़र्चा, आपको पता है कैंसर पेशेंट के हाउस, जैसे हमारा ब्लड का कल्चर होता है और एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब हो जाती है, रेजिस्टेंट है, और ये अच्छा, सो सिमिलरली यू लुक एट द जीन्स एंड यू डिसाइड कि इसमें कौन सी दवाई ज़्यादा बेहतर काम करेगी या कोई दवाई काम करेगी भी या नहीं. सो यू अवॉइड इनएफिशिएंट ट्रीटमेंट, इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट. ये भी एक विन होती है मेडिसिन में, इफ़ यू कैन रिलीव द पेशेंट फ्रॉम द बर्डन देयर. So this is precision. This is why we study genetics from a medical perspective. अब genetics थोड़ा पुराना लफ्ज़ है, by the way. Genetics 80s और 90s का word है. 80s और 90s के दिनों में एक बहुत ही ख़तरनाक और हैवी किस्म का प्रोजेक्ट हुआ है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. द एम्बिशन वाज कि हम डीएनए का एक एक हर्फ पढ़ेंगे. तो हमारे डीएनए के अंदर, इंसानी डीएनए के अंदर 3000 हरूफ पर मुश्तमिल एक किताब है. 3000 पेजेस, 3 बिलियन, 3 अरब हरूफ का एक बहुत बड़ा किताब है. दैट्स आवर डीएनए. एंड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन द 90s, उन्होंने ये डिसाइड किया था, मुख्तलिफ मुल्क जमा हो गए थे साइंसदान, के हम इसको शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे. सो वी विल हैव द रीड आउट और द सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम. फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में जा रहा था, उन दिनों में न्यूज़ आ रहे थे, मुझे अभी भी याद है, सदर क्लिंटन और टोनी ब्लेयर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एंड दे अनाउंस्ड कि वी हैव सीक्वेंस्ड द एंटायर ह्यूमन जीनोम. 3 अरब हरूफ हमने पढ़ लिए. तो दिस हैज़ चेंज्ड मेडिसिन फॉर एवर नाउ. मेडिसिन कैन नॉट गो बैक. अब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. तो नाउ वी हैव ग्रोइंग डेटा सेट्स ऑफ मुख्तलिफ ऑफ डिफरेंट डिजीज़. हर स्पेशलिस्ट चाहता है कि मैं अपने मरीज़ का डीएनए पढ़ूँ. अब तो ट्रीटमेंट्स भी आना शुरू हो गई हैं बेस्ड ऑन डीएनए. तो शुरू से आखिर तक पढ़ने को जीनोम, इस पूरे सेट को जीनोम बोलते हैं और इस फील्ड को जीनोमिक्स बोलते हैं. तो पुराने ज़माने में जेनेटिक्स था, अब जीनोमिक्स है. सो पीपल यूज़ जीनोमिक टेक्नोलॉजी to study all the DNA of their patients. And that's why we're very much interested in. And then of course we know कि DNA सिर्फ इंसान में तो नहीं है. DNA तो सारे जानवर भी DNA में कोडेड हैं, प्रोग्राम्ड हैं. सारे पौधे और प्लांट्स और क्रॉप्स आपके DNA में कोडेड हैं. सारे बायोडाइवर्सिटी और सारे स्पीशीज़ DNA में कोडेड हैं. आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि So जो लॉस्ट स्पीशीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, तो आपको आपकी जो ये जीनोम की स्टडीज़ हैं, क्या आप लोग डायनासोर्स को रिवाइव कर सकते हैं? So let me come to that. So now that we can read the entire DNA of any species, आपने देखा कोविड के दौरान हर मुल्क अपने मरीजों को सीक्वेंस कर रहा था, which means हर कोई अपने कोविड का वेरिएंट का डीएनए सीक्वेंस कर रहा था और ऑनलाइन डाल रहा था. सो all the doctors were knowing कि कौन सा स्ट्रेन चल रहा है आजकल. ये सीक्वेंसिंग ही की बदौलत हमें पता चला कि स्ट्रेन्स भी मुख्तलिफ हैं कोविड के. एक कोविड नहीं है, उनके डीएनए में डिफरेंस है. तो हमने कहा फलाना स्ट्रेन आया, ओए हो अब नया स्ट्रेन आ गया, नई वैक्सीन एक्सेट्रा. सो दैट्स रीडिंग डीएनए.
what has happened recently, पिछले 15 साल में, is the ability to write the DNA. तो अब हम स्क्रैच से DNA पढ़ तो सकते हैं, है हमारे कंप्यूटर्स भरे हुए हैं, हमारे लैब में आ जाएं तो हमारे कंप्यूटर्स भी भरे हुए हैं, ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेसेस भी हैं, बट अब हम अपनी मर्जी का DNA प्रिंट भी कर सकते हैं, which means you can create your own genes, and like you said, you can put them in organisms. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप अपने मर्जी का जीन डाल सकते हैं. तो नाउ इमेजिन द अपॉर्चुनिटीज आउट देयर कि आप क्या क्या नहीं कर सकते नेचर में एंड बियॉन्ड, राइट? माई क्वेश्चन मे साउंड लिटिल स्टूपिड एंड आई एम वेरी सॉरी टू कट यू, और मैं इसी बात को करना चाह रहा हूँ. मेरे जिस्म के अंदर एक डेफिशिएंसी आ गई है. मान ले मेरा बाजू कट गया, हाथ कट गया, अल्लाह ना करे, और क्या आप लोग अब इस काबिल हो गए कि आप लोग इस हाथ को दोबारा इसी तरह रिवाइव कर लें? सो अभी है नहीं, मगर आई थिंक इन द नियर फ्यूचर वील हैव द टेक्नोलॉजी कि हम आपके लेट से बोन मैरो सेल्स ले लें जो ग्रो करते हैं, जिससे ब्लड बनता है, और उसको हम रीप्रोग्राम करें कि यार हमें एक हाथ चाहिए, हमें सलमान का एक हाथ चाहिए, एंड इन प्रिंसिपल्स यू कैन पुल दिस ऑफ, यू कैन डू इट. अभी है नहीं, बट दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग. तो अर्ली जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट, खमीर फॉर एग्जांपल, खमीर हम ब्रेड में भी खाते हैं. डीएनए लिखना शुरू हो गए से क्या मतलब था? डीएनए से लिखना शुरू मतलब डीएनए के हुरूफ जो हैं उनको आप, डीएनए इज़ अ केमिकल, राइट? इट्स अ केमिकल एंटिटी जो आपके सेल में फिजिकली मौजूद है. आप उसको उठा सकते हो, आप उसको जमा कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो. तो अब आप उसको लिख भी सकते हो बाय स्टिचिंग द हुरूफ टुगेदर. अब मेरी बात को माइंड ना करना, Yeah. आप साइंटिस्ट्स खुदाई के कामों में उंगली नहीं मार रहे जरा सा? नहीं. सो द शॉर्ट आंसर इज नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों को सीख के उसको इस्तेमाल में लाने के चक्कर में. इसको मैनिपुलेशन नहीं कहते? कहेंगे, बट एवरीथिंग इज फार्मिंग इज़ मैनिपुलेशन. फार्मिंग में आप खावरा सॉइल कहीं और का होता है, फर्टिलाइज़र कहीं और से आया होता है, सीड्स किसी और मुल्क से आए होते हैं, और आप अपने खेत में उसको ना, सो यू आर मैनिपुलेटिंग योर. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जॉर्ज चर्च हार्वर्ड में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो ही गोज़ टू साइबेरिया. साइबेरिया रशिया में सबसे बड़ा फ्रोज़न डेजर्ट है. साइबेरिया में पुराने ज़माने 10,000 साल पहले तक देयर यूज्ड टू बी वुली मैमथ्स, जो एलिफेंट का बहुत बड़ा कज़न है, एक बिल्कुल एलिफेंट की तरह, बहुत ज़्यादा हेरी है. ठीक है, आप गूगल करके देख सकते हैं वुली मैमथ्स. आइस एज में था. आइस एज में, एग्जैक्टली, गुड वन. तो आइस एज में जो वुली मैमथ्स है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, 10,000 साल पहले ख़त्म हो गए हैं. ठीक है. फॉर डिफरेंट रीजंस. उनकी लाशें कहीं मर चुके हैं वगैरह, वो अभी भी साइबेरियन डेजर्ट में फ्रोजन पड़े हुए हैं. वाह. अभी भी फ्लैश बोन्स, समटाइम्स इवन ब्लड के साथ. ओके. 10,000 साल. सही. सो चर्च गोज इन, जॉर्ज चर्च जो साइंसदान है, he takes those samples, he sequences the DNA, and now they're trying to write it, print it, so they can put it in an elephant embryo. Oh. तो एलिफेंट के वोम में जो एम्ब्रियो है उसका DNA रिप्लेस करेंगे वुली मैमथ के, क्योंकि एलिफेंट इज़ द क्लोजेस्ट कज़न. ज़्यादा लाइकली है, ज़्यादा प्रोबेबल है कि ये बर्थ दे सकता है वुली मैमथ को. तो यू नेवर नो, डायनासोर्स तो शायद उनकी बारी बाद में आएगी. सो यू नो, सो जुरासिक पार्क वाज नॉट ऑल टुगेदर a myth, right? It was based on some evidence, right? So all of this, why is all of this haunting me? This whole thing is called de-extinction, by the way. De-extinction, extinction को reverse करना. So it's a legitimate kind of field जिसमें लोग काम कर रहे हैं अभी. लेकिन why is the concept haunting me? Why am I fearful of uncertain? Why do I feel कि एक दिन पता चलेगा यार डायनासोर्स बन गई हैं और जुरासिक पार्क की तरह निकल गई हैं पार्क से और तबाही डाल दी उन्होंने? नहीं, तो इंसान तो हमेशा अनसर्टन चीज़ों से डरता है. अनसीन चीज़ों से डरता है. यस, बट कुछ एक तो ये हॉलीवुड वाले भी हैं तो बड़े उस्ताद ना, वो तो ज़रा तरीके से दिखा भी देते हैं कि यार ये हम ये यकी करने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड. हाँ, ठीक है ना. तो आपने कहा कि वो यकी जो है वो मिथ नहीं है, वो यकी है, एग्जिस्ट करती है, ये करेंगे. oh yeah, I mean, अगर तो आपने जो वुली मेमल है क्या है, अगर उसका मुझे बता दिया कि कहानी शुरू हो गई है, तो अगर 10,000 साल पहले जा सकते हैं तो 50,000 साल पहले भी जा सकते हैं.
Oh yeah, if देखिए DNA is a very stable molecule. तो हमारे मिट्टी में हर जगह पुराने स्पीशीज़ की DNA पड़ी हुई है. वो अलग बात है कि हमें पता नहीं है. तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ अगर किसी वक्त DNA सीक्वेंसिंग इतना सस्ता हो जाए कि लोग स्पेड के ज़रिए या बकेट्स के ज़रिए सारी मिट्टी जमा करना शुरू करें और एक लॉन्ड्री मशीन में डालें कि यार इसमें ढूंढो कि कौन सी स्पीशी की DNA पड़ी हुई है. That's quite possible. And we could hunt for all these dead organisms from back in the times. Perfectly legitimate. अच्छा, अब आप इस पे मूवी बना सकते हैं. मैं आ रहा हूँ, आपने बोला पहले डीएनए को सिर्फ पढ़ा जा रहा था, अब उसको लिखा जा रहा है. अब उसको लिखा जा रहा है. अब लिख लिया, ये एक डीएनए मेरे पास, ये मैंने लिखा हुआ है. Yeah. फिर क्या होगा? Good question. Brilliant question. तो once you write it, it's a chemical. ट्यूब में पड़ी हुई है DNA. ठीक है. कुछ भी नहीं होगा. अगर आप इस DNA को किसी भी, and that's why it's not playing God or anything. It's just editing what's the chemicals out there, ना? If you, क्योंकि it's not going to do anything on its own. ठीक है. You still have to. But some weirdo will come and mess this up. इस पे आते हैं. इस पे आते हैं. अभी आप बता रहे थे कि इसको आपने लिख लिया और अब ट्यूब में है आपके पास. आपके पास ट्यूब में थोड़ा सा केमिकल DNA पड़ा हुआ है. तो what you can do now is, I think हमारा साइंस में हमारा फेवरेट ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है जिसका नाम ई कोलाई है, और एक यीस्ट है, खमीर, जो रोटी में होता है, जो यीस्ट डाला जाता है, राइट. या और काफ़ी सारे बैक्टीरिया ये वाले दही में भी होते हैं. ठीक है. पैकेट में मिलता है. पैकेट में मिलते हैं, राइट. ठीक है. सो दोज आर द ईजिएस्ट सेल्स टू क्रैक. अच्छा. सो यू टेक द DNA, you put it in a yeast. The yeast thinks ये मेरा DNA है. और वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है. और जब वो उसको पढ़ ले, अगर उसमें लिखा हुआ है कि अर्के गुलाब की तरह की खुशबू, क्योंकि हमने रोज़ में से वो DNA उठाया हुआ है, तो वो खमीर आपकी रोज़ की तरह की खुशबू आपको देगा. अगर आप उसमें लिखें कि जेलीफिश या जुगनू की तरह का ग्लो, तो वो सारा आपकी रोटी ग्लो होगी. ओके. So are you capable of doing that? We've done this. नहीं, चमकती हुई रोटी. चमकती हुई बैक्टीरिया. Oh, okay. This is interesting. Come visit us and you'll see it. So you take these pieces of DNA and then you have to put it in a cell. आप मोहताज हैं किसी लिविंग सेल का, ताकि वो उस DNA को पढ़े और उस पर अमल करे, उसके मुताबिक काम करे आगे, राइट. तो यीस्ट में आप डालते हो. आप अगर आप किसी बोन्स में से कोई जीन उठाते हैं, तो वो यीस्ट जो है वो समझेगा मैं तो बोन हूँ, तो वो कैल्शियम जमा करना शुरू कर जाएगा. सो एवरी हल्क का कॉन्सेप्ट आया था, द हल्क, द ग्रीन. सो दैट्स अनदर वन. X-Men is not all fake. I mean, it's not all. I mean, it's sci-fi, but it's not all mythical. The possibilities creatures. are there. It's in principle, yes. So हल्क नहीं, वो सारों का जवाब मैंने जिस तरह दुनिया के बनने के दिन से हक और बातिल की एक लड़ाई है. एक नूर है, एक नार है. आप लोगों की फील्ड में भी जब तक गुड साइंटिस्ट्स इस पे काम कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द मेडिसिनल रीजंस ऑफ इट, कोई एक इवल भी आएगा. हक बातिल तो है. That's a very important question. वो क्या कर सकता है? आप क्या कर सकते हैं? नूर क्या कर सकता है और नार क्या कर सकता है इस फील्ड में? इस पे ज़रा बात ज़रूरी है सर. That's a very important question, and it's important to understand कि the technology itself, in this case, इस फील्ड को synthetic biology का नाम देते हैं, by the way, because the DNA is synthetic. ठीक है. Man-made, man से डिज़ाइन हुआ हुआ, right? So synthetic biology या let's say artificial intelligence, let's say nuclear power, let's say dynamite. Nobel प्राइज जो है जिसके नाम पे, उन साहब ने तो डायनामाइट बनाया था. Let's say छुरी is a technology, a blade, right? ठीक है. तो blade itself is not right or wrong. ठीक है. नूर और नार या जो भी आपने कहा, हक और बातिल, right? Right or wrong. It's the human being behind it. ठीक है. तो इन प्रिंसिपल इनको हम लिटरेचर में इसको डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है. ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो दोनों साइड के लिए यूज़ हो सकती हैं. तो हमेशा व्हेन यू हैव, अब AI की ज़माने में AI की बातें हो रही हैं एंड एवरीवन जस्ट क्रेजी कि AI को कंट्रोल किया जाए या इसको थोड़ा छूट दे दी जाए जब तक हम उसका कोई फ्रूट ना देखें, राइट. तो और सम पीपल आर सेइंग नहीं, खुला छूट दे दें क्योंकि इसमें आपका कोई काम नहीं. आई एम समवेयर इन बिटवीन. So there has to be
smart people who look after the technology and keep an eye कि क्या हो रहा है. Government which represents the people should have some say कि यार थोड़े हमारे lines हैं. For example, अभी तक मोरेटोरियम था कि मोरेटोरियम का मतलब बैन था कि आप ह्यूमन एम्ब्रियोज में इस किसी चीज़ की ये वाली हरकतें नहीं करेंगे, मगर वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है. तो आई मीन वो ख़त्म इसलिए हो जाता है कि इट बिकम्स साइंटिस्ट्स आर कन्विंस्ड कि इट्स सेफ एंड यू कैन कंट्रोल इट. तो इसमें डूम और ग्लूम आई मीन एवरीवन किसी एग्जांपल से समझाएं ह्यूमन एम्ब्रियोज में क्या है. So it was like, for example, CRISPR एक technology है. CRISPR allows you to edit someone's DNA. अब अगर आप किसी बंदे को let's say थैलेसीमिया है, पैदाइशी बीमारी है, उसके ब्लड में कमी है एक चीज़ की, मगर आप अब वो 18-20 साल का हो गया है या हो गई है, आप CRISPR के ज़रिए एडल्ट लाइफ में उसको एडिट कर सकते हैं, उसके DNA को ठीक कर सकते हैं. बट वी डिड नॉट नो हाउ सेफ CRISPR इज़. तो साइंटिस्ट झिझक रहे थे कि यार करना चाहिए या नहीं, पहले जानवरों में चेक किया जाए, पहले और ऑर्गेनिजम्स में, तब जाके हम ह्यूमन में जाएंगे. बट एक क्रेजी किस्म का चाइनीज साइंटिस्ट निकला और उसने कर दिया बगैर बताए. जब उसके रिजल्ट्स आ गए तो उसने दुनिया को बताया कि मैं तो कर चुका हूँ और वो ठीक हो गया है. तो उसकी वजह से अब थोड़ा सा वो बैन टूट गया हुआ है. एंड नाउ साइंटिस्ट्स हैव द करेज टू ट्राई इट आउट अंडर डिफरेंट ethical sort of oversight from different bodies. Sir, I'll तो take आहिस्ता you. से चीज़ें से खुल रही हैं अब. I'll take you to the climax of this conversation. Okay. आपने जो बात थैलेसीमिया से समझाई, आपकी रिसर्च वो कैंसर पे कर रही है, राइट? Yeah, so we look at cancers, primarily cancers, yes. आप कैंसर ठीक कर सकते हैं. So ठीक करने के लिए पहले समझना होगा, ठीक है. और हम समझने के करीब जा रहे हैं, ठीक है. जा चुके हैं. ठीक है. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कहाँ खड़े हैं? सो फॉर एग्जांपल इसमें एक और बात अगर थोड़ी सी हाईलाइट करूँ. श्योर. सो ऑल योर साइंटिफिक नॉलेज वो भी सारा बायस्ड है. बायस्ड इसलिए है कि जितने भी आपके मेडिसिन की बुक्स हैं या आपके फार्मेसी में दवाइयाँ हैं, ऑल ऑफ दीज हैव बीन डेवलप्ड फॉर द कॉकेशियन, द वाइट पॉपुलेशन. क्योंकि रिसर्च में वो लोग शामिल थे, उनके मरीज़ शामिल थे, क्लिनिकल ट्रायल्स में वो लोग शामिल थे. तो 90% ऑफ द टाइम इट्स सूटेड फॉर देम, नॉट यू एंड योर जेनेटिक्स. तो इट्स अ बिट ऑफ अ सैड सिचुएशन कि यार हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन के होते हुए हम पूरली रिप्रेजेंटेड नहीं, हम अनरिप्रेजेंटेड हैं. हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. इसलिए तो हम बाहर से ड्रग लाते हैं एंड देन वी आर लाइक साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, या वी से कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपके ऊपर ट्राई ही नहीं हुआ, रिसर्च ही आपके ऊपर नहीं हुई. वी डोंट इवन नो व्हाट योर जीन्स लुक लाइक. इनफैक्ट जब हम लैब बना रहे थे, हमारा पिच प्लानिंग कमीशन को यही था, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 230 मिलियन लोग. वी डोंट नो आवर जीनोम, वी डोंट नो हाउ अ पाकिस्तानी जीनोम लुक्स लाइक. देयर इज़ नो कंसेंसस सीक्वेंस फॉर अस एंड दिस कंट्री. तो हमारी तो किसी भी क्लिनिकल रिसर्च, किसी भी ड्रग डेवलपमेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. वी आर आउट ऑफ द गेम. एंड देन व्हेन वी केम इन वी सेड यार हमें फंड्स दिए जाएं ताकि हम एक पेशेंट कोहोर्ट को उठाएं फॉर गॉड सेक और ज़रा देख लें कि हो क्या रहा है. उन्होंने पूछा कि उसका जीनोम किस तरह डिफरेंट है गोरे से. यस. फिर उन्होंने पूछा किस चीज़ में, हमने कहा कैंसर में. फिर कौन से कैंसर में? तो वी थॉट we did some research, we came back after a few months and we said कि यार हम ओरल कैंसर में जाएंगे, मुंह का कैंसर. ठीक है. It's very big in the subcontinent, especially in Pakistan. And what is the reason? Thanks to pan और नस्वार and hygiene. तो poor hygiene. तो we said कि यार हम ओरल कैंसर में देख लें. ठीक है. तो अब we've had early results and we know how it looks like. तो अब मैं आपका सवाल का जवाब दूँ. The cancer itself. हाँ. अच्छा. अब आपका जवाब दे सकता हूँ. तो इन ओरल कैंसर in the Pakistani population, we know what are the mutations that cause it. So now we can talk about ilaj. Achha. Right? So Makes sense. 8, 9 out of 10, we know. So you are now on the verge of writing it? We want to move towards that now. You want to move towards that. So you're And done with the writing- reading part? We're done with the DNA part. Nice. Or And how long did it take you to get to this point?
Good question. 6 years, 7 years. Oh, Yeah. 7 years you have just decoded it yet. Yes. And you have to rewrite it now. हाँ, The उसमें, decoded part. Yes. That's one way of doing it. The other way is इन DNA के errors के मुताबिक drugs ढूंढे जाएं जो हमारे patients के ऊपर बेहतरीन काम कर सके, बेहतर काम कर सके, efficiently उनका response है सारा कुछ. तो yes, there's a lot of pharmacological sort of research to happen now. ये एडिटिंग वाला काम भी किया जा सकता है. शुरू में तशख़ीस ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमें पता चल जाए कि इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, इस पेशेंट को इरनम जाना चाहिए सर मैं ये पूछना या चाह नहीं रहा जाना हूँ, चाहिए. थैलेसीमिया के जिस पेशेंट को चाइनीज साइंटिस्ट ने वो क्या हुआ था क्रिस्पर कर दिया और उसका थैलेसीमिया गायब हो गया. क्या कोई आप लोग ऐसा सिस्टम नहीं कर सकते, कोई ऑल्ट्रेशन कि उसके मुंह का कैंसर जो है वो सेट होना शुरू हो जाए? सो समटाइम्स देयर थैलेसीमिया और रिलेटेड डिजीज़ जो हैं उनमें फ़ायदा एक ये है कि we know there's one mutation and we know there's a gene involved and that's the only gene, one gene. So we know the target. Cancers, some cancers are very complex. So multiple genes are involved. तो how do you फैल भी जाता है ना, फैल चेंज होता जाता है. तो आपके बॉडी में जब कैंसर ग्रो होता रहे, फैलता रहे, वो चेंज भी होता जा रहा है. ठीक है, एट टाइम्स वो रेजिस्टेंट हो जाता है. ठीक है. तो दैट्स व्हाई कैंसर्स आर अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन इस तरह के मोनोजेनिक डिजीजेस. हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आप इस तक पहुंच जाएंगे? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आई मीन एस्टैब्लिश्ड साइंस है सारा. It's just about putting the right effort in a timely manner, in a consistent manner. ये सिलसिला टूट ना जाए. अगर ये टूट गया तो फिर सारा कुछ बिखर जाएगा, right? Are you backed by the government? So our main project is funded by the Planning Commission. Okay, that's nice. That's nice. Yeah. अगर मुझे आप ना में जवाब दे देते मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता. We now hope we scale this. So we have interest from friends in lung cancer, for example. वो भी चाहते हैं कि आपके जो स्टेंट्स लगते हैं, तो स्टेंट्स योर जीन्स डिसाइड कि आपके आर्टरीज़ की विड्थ क्या है, तो आपका कौन सा स्टेंट लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए. दीज आर ऑल गाइडेड बाय जीन्स. सो द मोर वी नो अबाउट जीन्स, द बेटर वी कैन ट्रीट आवर पीपल. आप लोग, आई नो दिस इज ओल्ड स्कूल, लेकिन जीन्स की ऑल्ट्रेशन के साथ आंखों का रंग, बालों का रंग, रंगत, ये चेंज कर सकते हैं? पाकिस्तान अभी उस लेवल पे पहुंच गया? सो आई मीन इफ़ यू कैन टैकल कैंसर जैसी चीज़ें, इफ़ यू बिगिन टू डू दैट, ये वाली चीज़ें तो बड़ी ट्रिवियल रह जाती हैं. आई एम श्योर कोई ना कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का बंदा उठेगा और ये करेगा किसी वक्त. आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू डू इट बिकॉज इट्स टू रिस्की फॉर दैट. आई मीन प्रोज एंड कॉन्स आपको वे करने होते हैं, राइट? तो कॉस्मेटिक एरिया में तो फ़िलहाल नहीं है. आई मीन बाद में शायद आई डोंट नो एक्समैन भी आ जाएं. इसी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था कि अगर अभी इस वूम के अंदर काम हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि 4 हाथों वाला बच्चा पैदा कर लो. सम weirdo will someday do that. Yeah. So I mean, if the technologies, और यहीं से कहीं, माजरत के साथ, यहीं से कहीं से कोई यकी शुरू होगी जहाँ पे ट्रूली साइंटिस्ट्स फॉर द सेक ऑफ साइंस काम कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं होगी. यहाँ कहीं पे होगा, कोई पैसों का जुगाड़ बनेगा, अगला कहेगा 4 हाथों वाला बच्चा बना देता हूँ. नहीं, आई मीन प्रोवाइडेड इट गेट्स सो चीप एंड ईजी कि इस तरह का इडियट करवाएगा. अच्छा, ठीक है. डॉक्टर साहब, हमने 2.0 पे बात की, आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम पे बात की, आपकी रिसर्च पे बात की, विच आई फील कि अभी बड़े स्पेसिफिक एक डोमेन में बात हो रही है. यू हैव जस्ट डिकोडेड दैट यू आर इन पर्टिकुलरली इनटू जीनोम एंड माउथ कैंसर. आपकी रिसर्च पहुंच गई है रीडिंग वाले फेज से अब इंशाल्लाह राइटिंग वाले फेज पे, होपफुली इंशाल्लाह. और आप पेशेंट्स के सैम्पल्स की एक लाइब्रेरी बना रहे हैं जो आपको या फ्यूचर में आने वाले टाइम में साइंस को एक बैकिंग देगा कि अगर इसका पैटर्न इस तरह का है तो इसको इस किस्म का कैंसर है और इसको इस किस्म की दवाई लगनी है. यहाँ तक की तो बात मुझे सारी समझ में आ गई है. ये बताएं, अब सिंस यू आर अ डाइवर्स पर्सन, BNU में क्या करते हैं सर? ये कहाँ से आपको पता चल गया? हमने अपना काम पूरा किया हुआ है.
It's a very interesting course that is happening with Beacon House National University, Lahore. Lahore. Acha. So School of Visual Art or Design. I think a lot of credit goes to the famous acclaimed artist Rashid Rana Saab, Acha. who's the dean there, School of Visual Art or Design. He's done some terrific work. Boston में पढ़े हैं, and then Pakistan, NCA Boston, फिर Pakistan. And he did a lot of exciting work. कुछ मुझे भी समझ नहीं आता कि इन्होंने किस तरह किया है, कैसा है. So he reached out and I happened to have worked with him a couple of times. And then एक बार हम लाहौर में जब पहली बार physically मिले तो पटाखे शुरू हो गए टेबल पे कि भाई जहनों में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. And then he said, why don't you come and give a talk? So I just went and gave a talk at BNU to the art school on biology. On biology. On biology. Nice. And what we do, right? Nice. So that talk I think went really well because the response was amazing. Rashid really liked it. And then I don't know how we went so fast ke we just cooked up a hybrid course ke we need a biology wala course for visual art or design ke bache to be able to think of using such technology in their art. BNU is extremely lucky कि उनका एक बहुत ही कमाल का एक प्रोग्राम है, interdisciplinary extended design और art, AIDA के नाम से. It's a very open किस्म का प्रोग्राम, 4-year प्रोग्राम जिसमें बच्चे चीज़ें मिक्स कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, right? I usually say we DJ with different subjects. आप लोग सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में जाते हैं, वो लोग हार्डवेयर वाले पार्ट से खेल रहे हैं. हम सॉफ्टवेयर में भी जाते हैं, हार्डवेयर में भी जाते हैं और बायोलॉजी में वेटवेयर में जाते हैं. सो द बायोलॉजी की लैब को वेट लैब कहा जाता है. ठीक है. दैट्स व्हाट गिव द वर्ड वेटवेयर. तो 3 वेयर्स हैं जिनको आप मिक्स करके मुख्तलिफ चीज़ें. वी आर इवन थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक बायोलॉजी फॉर क्रिएटर्स नाउ. तो यू कुड क्रिएट स्टफ, यू कुड क्रिएट आर्ट एंड कॉन्टेंट इन बायोलॉजी. आई वॉज लकी के राशिद साहब के साथ एक और कोलैबोरेशन हुई एक पीस ऑफ आर्ट पे. सो वी कोलैबोरेटेड ऑन दैट एंड देन he presented that in India at one of the very famous art galleries, Mumbai mein. So it's been a very happening and very What exciting. was that piece? I want to know about it. वो कोई पेंटिंग थी, कोई स्कल्पचर था, क्या था? So we coded some historic images and letters of the founder of the gallery to Nehru, I believe. उनके खतूत थे, उनको हमने सारा कोड किया DNA के अंदर और उस DNA से उन्होंने आर्ट बनाया फिर. Wow. And you need to look this up. बड़े मजे का है. So yeah. Where can I find this? It's online. Instagram पे भी है और उनकी गैलरी की वेबसाइट पे भी है. और इनका नाम जरा बताएंगे दोबारा? राशिद? राशिद राना. राशिद राना. Yeah. This is something one must look up. Yeah. अच्छा जी. अच्छा, टॉकिंग ऑफ दिस मुझे याद आया, हम जब आपकी लैब आए थे तो बच्चों ने दिखाया, आप लोगों ने डिफरेंट इमोशंस को डी कोड किया हुआ था और उसके कुछ सिंबल्स बनाए हुए थे. एंड दे वर सो इंटरेस्टिंग कि वो एंग्री का अपना था और हैप्पीनेस का अपना था. वो क्या साइंस है और वो क्या टेक्नोलॉजी और वो क्या सिस्टम है? I think that was just they used DNA as an information. उन्होंने hypothetical non-existent proteins के structures बनाए. उन्होंने कहा कि हम कहते हैं हम पेशावरी हैं, हमारे खून में हॉस्पिटैलिटी है और बहादुरी है और शुजाअत है और मेहमान नवाजी वगैरह. सो दे जस्ट ट्रांसलेटेड दीज. उन्होंने सर्वे किया ज़रा, लोगों से उठाए वर्ड्स एंड देन दे कन्वर्टेड दोज वर्ड्स इनटू DNA वाले लेटर्स एंड देन दे केम अप विद प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ इट. उनको उन्होंने फिर हाथ से बनाया और उसकी गैलरी सी बना ली कि भाई अगर हमारे खून में मेहमान नवाजी के प्रोटीन्स होते हो किस तरह दिख रहे होते हैं. तो देयर इज सम साइंस टू इट, बट इट वाज मोर अबाउट आर्ट एंड एक्सप्लेनिंग द आइडिया कि नए प्रोटीन्स भी बन सकते हैं. डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आफ्टर मीटिंग यू हाउ माई पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड फॉर अ साइंटिस्ट. व्हाट अ साइंटिस्ट look like or think like or has a way of life, especially after hearing the diversity from 2.0 to BNU to the work you're doing and the facility and the culture that you're providing. And not just in your lab, I think the ripple goes everywhere.
आई एम श्योर व्हेन यू कैरी द सेम एनर्जी टू यूके, आपका अपना वहाँ पे अपना एक छोटा सा एक फ़ैन क्लब, एक फ्रेंड्स क्लब बन जाता होगा और इंटेलेक्ट को वहाँ से शुरू किया जाता होगा जहाँ से डॉक्टर फैसल जाते हैं. एम आई राइट? थैंक यू. हाँ, तो मैं देखने वालों को ये एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा हूँ कि साइंस का अपना एक चार्म है. हमारे मुल्क में वो चार्म हमें पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, लेकिन ग्लैडली अब आपके जैसे लोग और आपके जैसे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और इस तरह की लैब्स हैं जो शायद आज मुल्क में बहुत थोड़ी हैं. आई एम श्योर हमारे सूबे में शायद एक है, लेकिन आप जो छोटे छोटे सीड्स लगा रहे हैं, इंशाल्लाह ये 5-6 साल के बाद जब वापस ग्रेजुएशन से और जगहों से आएंगे तो ये अपने साथ एक विजन लेके आएंगे इस तरह की लैब्स का. सो वन मैन, आई बिलीव, आई आफ्टर मीटिंग यू आई नाउ बिलीव सो कि एक बंदा कभी जिस तरह इकबाल साहब पैदा हुए थे और पाकिस्तान बनने से पहले चले गए थे, लेकिन अपना मैसेज अपने काम से दे गए. इस तरह आप एक मैसेज दे रहे हैं, वो कब फ्रूट बेयर करता है, कहाँ तक जाता है, कब उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, वो तो वक्त बताएगा. बट हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट एंड आई एम प्राउड टू हैव अ टॉक विद यू ऑनेस्टली. Thank you. It was an honor, और I'm really delighted कि आपका पर्सपेक्टिव बेहतर हो गया है साइंस के बारे में. बहुत ज़्यादा, बहुत And I really hope कि I mean there's no reason to lose hope. I mean गेम तो अभी शुरू हो रहा है, right? Okay. And then we need all these things exist right here in Peshawar. So RMI was one of the earliest hospitals in Pakistan to have a genomics testing का center. Wow. तो RMI में फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की टेस्टिंग हो सकती है. व्हेन यू हैव ब्रेस्ट कैंसर योर सिबलिंग्स माइट हैव देम, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्क्रीन देम. तो हु वुड हैव थॉट के RMI में ऑफ ऑल प्लेसेस, AKU से पहले और शिफा से पहले, उन बड़े अस्पतालों से पहले पेशावर में इस तरह की फैसिलिटी हो. एंड देन यू हैव प्लेसेस लाइक आवर लैब एंड अदर्स जहाँ पे यंग पीपल शुड कम. आई मीन विजिट करने में कोई हर्ज नहीं है. You don't need any permission. You can swing by anytime. You should follow these bright young scientists in the lab, Instagram पे, Twitter पे, जो भी. I mean, that's how you educate yourself and enrich your mind and you plan out your career. So I really hope you multiply हो पेशावर में और हम सब मिल के इंशाल्लाह काम करें. देखने वालों, ओपन डोर पॉलिसी है इनके लैब की. किसी भी टाइम जाएं, कुछ भी पूछें, अपनी क्यूरियोसिटी को किल करें. Fall in love with science, fall in love with what scientists are doing in Peshawar, for Pakistan. Thank you for coming in, sir. It was an honor. और मैं दोबारा अब एक चेंज पर्सपेक्टिव से आपकी लैब आऊँगा. ज़रूर. And I hope to have a picture with you. हो सकता है आप आगे निकल जाएं. हो नहीं सकता, I'm sure. This was a pleasure. और आप लोग सब अपना ख्याल रखें, साथ बनाए रखें, बात बढ़ाए रखें. अल्लाह हाफ़िज़.